لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول الرحیم السلام علیکم. آپ 72 کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلان محمود. اس وقت ہم موجود ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ القرہ حافظ القاری پناہ فی خاتم النبیین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے عرس مبارک کے موقع پر. آج عرس مبارک کا تیسرا روز ہے اور عاشقان رسول کا سمندر امڈ آیا ہے. رات کی میری پرسیپشن یہ تھی کہ ہزاروں کا یہاں پہ جو ہے وہ قافلوں کی صورت میں لوگ. اب میری پرسیپشن چینج ہو چکی ہے اور یہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں, جوک در جوک آ رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرہ مین اگر میرا دکھائے تو یہاں پر دو طرح کے جو ہے وہ سیکیورٹی انتظامات سے عوام گزر کر آ رہی ہے. پہلے ویسے چیکنگ ہو رہی ہے, پھر یہاں پر واکنگ تھرو گیٹس لگائے گئے ہیں. اور آگے اگر سٹیج کی بات کریں, ہم پراپر کور کر کے آ چکے ہیں. وہاں آپ کو جب ڈرون ویوز آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں آگے تل دھڑنے کی جگہ نہیں ہے. 2 کلومیٹر تک ایک مطلب کہ کھچا کھچ سارا جو ہے وہ کراؤڈ سے جگہ بھر چکی ہے. 2 کلومیٹر سے آگے آنورڈ بات کریں تو کچھ جگہ مطلب لوگ ابھی آ رہے ہیں. یہاں سے پیچھے جو لائنز لگی ہوئی ہیں 2 جگہ جہاں سے سیکیورٹی کی چیکنگ ہو رہی ہے, وہاں پر تقریباً 2 کلومیٹر لوگ کھڑے ہیں لائنوں میں اور وہ پراپر سیکیورٹی سے ہو کر آئیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں, آگے لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ کیا ایسی وہ شخصیت تھی جنہوں نے اس مجمع کو اپنی طرف کھینچ لیا کہ وہ 1 سال ہو گیا ہے دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں, لیکن لوگ آج بھی ان سے والہانہ عشق کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. یہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ایک علامہ صاحب. علامہ صاحب بتائیے گا, ہم نے تاریخ ساز جنازہ دیکھا, ہم نے تاریخ ساز چہلم دیکھا, آج تاریخ ساز عرس مبارک دیکھ رہے ہیں. یہ عوام کا سمندر آخر وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جو رسول اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر ساری کائنات ان کی ہو جاتی ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں علماء ہیں, مدارس بھی ہیں, لیکن بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن فرمایا وہ صرف وہی وجہ ہے. اور سرکار کا جو نام لیتا ہے اگر وہ پرندہ بھی ہو تو اللہ پاک اس کو پرواز دے دیتا ہے. اگر وہ چونٹی بھی ہو نبی سے پیار کرے تو اس کا ذکر قرآن میں آ جاتا ہے. تو بابا جی نے تو الحمدللہ 73 سالہ تاریخ کے اندر ایک ایسی ریکارڈ قائم کیا اور قیامت تک یہ ریکارڈ ہی رہے گا کہ ایک طرف صدر کا جنازہ ہے 7 بندوں نے شرکت کی ہے, ایک طرف عاشق رسول کا جنازہ ہے جس میں پورے پاکستان نہیں پوری دنیا سے 2 کروڑ کے لوگوں نے شرکت کی ہے. بس یہی بات ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بڑی بڑی جماعتیں آئی ہیں تحریکی اور مذہبی پاکستان کی تاریخ میں 73 سالہ, لیکن یہ جو جماعت ہے اس میں کوئی جھکاؤ اس لیے نہیں ہے کہ یہ جماعت خالصتاً رسول اللہ کی جماعت ہے. اور جو تاجدار ختم نبوت کا ہم نعرہ لگاتے ہیں, یہ نعرہ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے, یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. اور لبیک یا رسول اللہ کا نام لیتے ہیں یہ نبی کے صحابہ کا نعرہ ہے. الحمدللہ ہم بڑے مان اور فخر سے کہہ سکتے ہیں جو 73 فرقوں میں سے ناجی ٹولہ ہے, الحمدللہ ہم یہ بڑے مان سے کہتے ہیں کہ وہ لبیک یا رسول اللہ کہنے والے. ختم نبوت. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا, لگ یہ رہا تھا جس دن سعد حسین رضوی صاحب رہا ہوئے ہیں, لگ رہا تھا مسلمانوں میں کوئی چوتھی عید آ گئی ہے, پوری دنیا کے لبرلوں کی چیخیں نکل گئیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ دیکھیں جی, جو خون کا اثر ہوتا ہے حلالی ماں باپ کا خون پھر وہی کام کرتا ہے جو باپ نے کیا تھا. مشن, یہ مشن ہی تھا. بابا جی خادم حسین رضوی کا مشن تھا. حافظ سعد حسین رضوی کا خود کا کمال نہیں ہے,
یہ بابا جی نے جو ان کی تربیت کی تھی وہ اس تربیت کا کمال ہے۔ الحمدللہ ایک 26 سالہ نوجوان، تاریخ میں اتنا استقبال پوری دنیا میں کسی لیڈر کا نہیں ہوا جو ہمارے قائد کا ہوا ہے۔ یہ صرف ان کا کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے تو رسول اللہ کی ذات سے نسبت کا کمال ہے۔ اور الحمدللہ ہزاروں شیخ الحدیث ہیں، لاکھوں علماء ہیں۔ ہم بابا جی رضوی کا نام کیوں لیتے ہیں؟ کہ انہوں نے رسول اللہ کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جب نیب نے یہ ویریفیکیشن کی ہے کہ بابا جی کی پراپرٹی جائیداد 3 مرلے کا وہ مکان ٹوٹا ہوا ملا ہے، انہوں نے اپنی ذات کی خاطر کچھ نہیں کیا۔ الحمدللہ میں نے حلقہ N 184 سے الیکشن MNA کا لڑا ہے، اور میں کوئی سیاسی خاندان سے نہیں ہوں، میں نے کبھی بھی BT ممبری کا بھی الیکشن نہیں لڑا، لیکن پہلی دفعہ سرکار کے نام کا جھنڈا جب لیا ہے تو ایسے لگتا تھا کہ ہم پوری نسل سے خاندانی سیاستدان ہیں۔ 20,000 میں نے ووٹ حاصل کیے، یہ میرا کمال نہیں تھا، یہ رسول اللہ کے نام کا کمال ہے۔ اچھا، آخری پیغام دنیا کے گستاخوں کو کیا دینا چاہیں گے؟ کیونکہ دنیا آج سعد حسین رضوی پر نظریں جمائے ہوئے ہے، رضوی شیر کی آمد ہو چکی ہے اور سب لوگوں کی نظریں اس کراؤڈ میں ہیں، تو اب دنیا میں ہم نے کیسے جواب دینا ہے؟ کیونکہ سعد حسین رضوی کا مشن یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ناموس رسالت کا کام کرنا ہے، نہ ہی سعد حسین رضوی کسی فرقے یا دھڑے کا جو ہے وہ سربراہ ہے، وہ پوری امت مسلمہ کا سربراہ ہے۔ تو آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے گستاخوں کی اب کس طریقے سے شامت آنے والی ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے جب اسلام کا نام ہوتا ہے نا جی، اسلام کے مشن پہ بندہ چلتا ہے، سارے راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ اسلام خود ایک پاور کا نام ہے، اور الحمدللہ جتنے گستاخان رسول صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں۔ آپ نے حشر دیکھا ہی ہے اس بدبخت ملعون کا جس نے یہ خاک شے کیے تھے کہ آگ بجھنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ یہ تو دنیا کی آگ ہے، دوزخ کی آگ ان کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ اور انشاءاللہ جیسے یہ پاکستان کو اللہ نے فتح و کامیابی نبی کے غلاموں کو عطا فرمائی ہے، پوری دنیا میں حضور کا نام ہوگا اور اسلام کا بول بالا۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا وقت دینے کا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں عوام کا یہ جوش، یہ جذبہ۔ دیکھ لے محفل سجا کے ہم نے رکھی ہے، تیرے افکار کی شمع جلا کے ہم نے رکھی ہے، میرے مرشد تو آ کے دیکھ ہم ثابت قدم تیری سوچوں کی خوشبو بھی لگا کے ہم نے رکھی ہے، مگر ہاں دست شفقت کا وہ رکھنا یاد۔ ہم نے تاریخ ساز جو ہے وہ پہلے جنازہ دیکھا، پھر تاریخ ساز چیلم دیکھا، آج عرس مبارک شاندار طریقے سے جو ہے وہ ہو رہا ہے یہاں پر، تو اس عوام کے سمندر آنے کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام کے آنے کی ایک ہی وجہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد نے دنیا سے مسلمان گیا۔ حضور قبلہ امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری زندگی ایک ہی نعرہ لگایا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ زندگی میں ساری زندگی حضور علیہ السلام کی عشق اور محبت میں لوگوں کو اجاگر کرتے رہے، لوگوں کو گرماتے رہے۔ تو آپ کے جانے کے بعد آپ نے دیکھا، پہلے تو آپ کے جنازے نے ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا کے جانے کے بعد وہ اٹھ نہیں جاتے، حقیقتاً اللہ کے ولی مرنے کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ماشاءاللہ آل کفر کے وانوں میں جس نعرے نے زلزلہ برپا کیا، لبیک 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 یا رسول اللہ، وہ نعرہ لے کر حضور قبلہ امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نکلے، جس کو
आलम कुफर ने और कुफर के ऐवान में और यहूद व नसारा के एजेंटों ने दबाने की कोशिश की, लेकिन ये नारा मिटने वाला नहीं है, दबने वाला नहीं है, क्योंकि मिट गए हैं, मिटते हैं, मिट जाएंगे याद आ तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो इंशाअल्लाह ये नारा कभी मिटने वाला नहीं है, दबने वाला नहीं है। ये जितनी आवाम आ रही है, लाखों हज़ारों लाखों की तादाद में, इसमें हजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इखलास है। और ये जो जितने लोग आए ये किराए के लिए नहीं आए हैं, जितनी बाकी पूरी पाकिस्तान की जितनी जमातें हैं, सारी जमातें इकट्ठी होके 1000 बंदा जमा नहीं कर सकती। तो यहाँ सैकड़ों अहबाब आए हैं और कोई बंदा ऐसा नहीं है, लाखों की तादाद से कोई बंदा ऐसा नहीं है जिस तक पानी ना पहुँचे, कोई बंदा ऐसा नहीं है जिस तक लंगर ना पहुँचे, रोटी ना पहुँचे। ये कौन दे रहा है, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुज़ूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन हाफ़िज़ खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे, आप चलें तो सही तो मदद अल्लाह की पहुँचेगी। और दुनिया ने देखा जब नमूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आवाम निकली तो फिर अल्लाह की मदद आपने देखी, अल्लाह ताला ने कैसी मदद फरमाई। अच्छा अलामा, असल में बात यह है कि एक 27 साल का नौजवान जिसके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी और अल्लाह ताला ने उसे सुरखरू किया, मुझे ये बताएं इस तारीख साज कामयाबी के बाद तहरीक कितनी ऊपर गई है? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बात कर। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लाह के फजल व करम से इसकी मकबूलियत पहले से दुगनी चुगनी हो गई है। अल्लाह ताला के राज़ों में से एक राज है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। हुज़ूर क़िबला हाफ़िज़ खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था, मुझे इंतज़ार रहेगा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़रिए से आपने मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज़ फरमाना है। और सारे लोग आप में हम सारे दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान में कानून मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज़ फरमा। अगर वो सारे लोगों की दुआओं का मजमुआ इस वक्त अगर पूरे पाकिस्तान को नज़र आता है तो वो हाफिज़ अल्लामा साद हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया की नज़र में नज़र आ रहा है। अच्छा, पूरी दुनिया के गुस्ताखों को क्या पैगाम देंगे, क्योंकि अब पूरी दुनिया की नज़रें साद हुसैन रिज़वी और इस क्राउड पर जमी हुई हैं? पूरी दुनिया के गुस्ताखों को एक ही सबक है जो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौका पर दिया था। जब मेरे और आपके आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के मौका पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, 10,000 सहाबा इकराम का लश्कर था। सरकार ने फरमाया बच्चों को छोड़ देना है, औरतों को माफ़ करना है, बूढ़ों को माफ़ करना है, और जो अपने दरवाजे बंद कर दे उनको माफ़ कर देना है, जो अपने सरदारों के घरों में पनाह ले उन्हें माफ़ कर देना है। लेकिन जिसने मेरी शान में तौहीन की है, मेरी शान में गुस्ताखी की है, मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलूहु, गुस्ताख के लिए कोई भी माफ़ी नहीं है। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ऐलान किया, मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलूहु, गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अच्छा, एक पैगाम उम्मत मुस्लिमा के नाम जो अभी भी पाकिस्तान में रहकर भी इधर उधर भटक रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए एक ही पैगाम है, आओ दरे मुस्तफ़ा पर, आओ दरे मुस्तफ़ा पर, यहाँ अपने तो अपने बेगाने भी हाथ खाली जाया नहीं कर। क्या बात है, बहुत शुक्रिया अलामा साहब आपका हमें वक्त देने का। तो हम आगे देखते हैं कि उर्स मुबारक की सूरत हाल किस तरह से आवाम का जोश व जज्बा आसमानों से बातें कर रहा है, और इनका ये कहना है कि हमें अपने कायदीन का इंतज़ार है, उनकी एक कॉल पे हम अपने घोड़े समंदरों में डाल देंगे। तो बस एक ही इनका मकसद है कि हमने नामूस रिसालत का काम करना है और रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पर लाना है। मुस्लिम जो बने बुज़दिल ज़िल्लत ही मुक़द्दर है, मुस्लिम जो बने बुज़दिल ज़िल्लत ही मुक़द्दर है, मुस्लिम जो बने बुज़दिल ज़िल्लत ही मुक़द्दर है, मुस्लिम जो बने बुज़दिल ज़िल्लत ही मुक़द्दर है। रुसवाई उम्मत पर खामोश न बैठेंगे, रुसवाई उम्मत पर खामोश न बैठेंगे। घर बार लुटाएंगे
सर अपने कटाएंगे, घर बार लुटाएंगे, सर अपने कटाएंगे। हमारे साथ इस वक्त एक और अलामा साहब मौजूद हैं जो कि रावलपिंडी से आए हैं। अलामा साहब, आपसे भी यही सवाल है, एक तारीख साज नमाज जनाजा, फिर तारीख साज चेलम और अब तारीख साज उर्स पाक होने जा रहा है, तो इस क्राउड की, इस अवाम के समंदर की आने की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे बड़ी वजह नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ इश्क और मोहब्बत है और बाबा जी का ये फैज़ान है। मुख्तसर ये है कि नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की मोहब्बत में ये सारे लोग आए हुए हैं, हुजूर के इश्क में आए हुए हैं। जब नबी अलैहिस्सलाम के इश्क में आए हुए हैं तो आप इनका जज्बा मज़ीद देखने के कितना जज्बा होता है। अच्छा अल्लामा साद हुसैन रिजवी जिस दिन आए हैं, ठीक है, रिहाई होकर, बाइज़्ज़त रिहा होकर, तो ऐसा लग रहा था कि मुसलमानों में चौथी ईद आ गई है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? अल्लामा साद रिजवी साहब तो हमारी जान है, हमें उन पर इतना एतमाद है। अगर वो हमें कहें कि आप अपनी जानें और अपनी गर्दनें जो है वो हमारे हुक्म पर जो है ना वो सामने रखें, तो हम अपनी जानें भी साद रिजवी के पाँव तले रख देंगे। ठीक है, साद रिजवी साहब बाबा जी की तस्वीर हैं और बिल्कुल उनके नक्शे कदम पर हैं। इस वजह से हम उनके साथ हर वक्त तो माल, जान, इज़्ज़त जो कुछ भी हमारा है, हम साद रिजवी के कदमों पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और यही सारे जितने भी ये लोग आए हुए हैं, ये सब साद रिजवी की मोहब्बत में आए हुए हैं और साद रिजवी पर एतमाद करके आए हुए हैं। अच्छा ये बताइएगा कि इस तहरीक में ऐसा है क्या कि शेल बरस रहे होते हैं और ये नीचे मस्त रक्स कर रहे होते हैं? जज्बा इश्क रसूल है भाई, इश्क नबी है, इनमें और कुछ भी नहीं। जो बाबा जी ने दिलों में इश्क रसूल इनके सीनों में डाल दिया है ना, यही एक जज्बा है जिसकी वजह से ये अपने घोड़े समुद्रों में डालने के लिए तैयार रहते हैं। ये अपनी जानें हमेशा थैली पर रखने के लिए शहादत के जज्बे से ही आए हुए हैं, इन्हें कोई रोक नहीं सकता है। और एक दिन दीन तख्त पे ला कर छोड़ेंगे और आपकी और मेरी आंखें देखेंगी कि दीन इंशाअल्लाह ताला तख्त पे आएगा। अच्छा मुझे ये बताएं, जितनी सौबतें, जितने दुख, जितनी परेशानियाँ किबला हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने बर्दाश्त की और उनके कारकुनान ने बर्दाश्त की है, अब एक तारीख साज कामयाबी हमें मिली है, तो इससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक सियासी प्लेटफॉर्म के लिहाज से कितना ऊपर जाएगी? इंशाअल्लाह ताला, मैंने पहले भी कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला सियासी एतबार से इन तमाम सियासी जितने भी जालिम हैं, जो चोर हैं, डाकू हैं, लटेरे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के ख़जानों को लूटा है और हमें हर दफ़ा लालीपॉप देकर भाग जाते हैं और हमेशा ये हमारे सरों पर जो है ना मुसल्लत होते हैं। इंशाअल्लाह ताला दीन तख्त पे जब आएगा तो हर जालिम को उसे पकड़ा जाएगा, उसे कुचला भी जाएगा और हर मजलूम की मदद की जाएगी। साद रिजवी साहब का भी यही मिशन है। अच्छा एक सियासी इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, मीडिया प्रोपेगेंडे में अव्वल नंबर पर आ रहे हैं, उन्हें बस मौका चाहिए तहरीक पर कुछ ना कुछ बातें करने का, उन्हें क्या जवाब देंगे? क्या कुछ ऐसा होने जा सकता है, कुछ ऐसा पॉसिबल है कि तहरीक किसी के साथ इत्तेहाद करे? देखिए जी, जो अल्लामा साद रिजवी साहब का मौक़िफ़ है, जो उन्होंने इस मामले में जो मौक़िफ़ दिया, हमारा भी वही मौक़िफ़ है, हमें उन पर पूरा एतमाद है। उनका यही मौक़िफ़ है कि सियासी लोगों के लिए हमारे दरवाजे तो खुले हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो अपना नज़रिया या अपनी बातें हम पर मुसल्लत करें। हम उनके मौक़िफ़ पर नहीं आएंगे, हमारे मौक़िफ़ पर कोई आना चाहे तो हमारे दरवाजे उनके लिए। आखिर में पूरी दुनिया के गुस्ताखों को क्या पैगाम देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया आज स्पेशली इस इवेंट को कवर कर रही है? पूरी दुनिया के गुस्ताखों को और पूरे आलम कुफर को हम यही पैगाम देना चाहते हैं, जो हमारे नबी का गुस्ताख होगा हम उसे किसी सूरत में भी मुआफ़ नहीं करेंगे। मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। उससे मुबारक बड़ी ज़ोर शोर के साथ जारी है और कारकुनान का जोश व जज्बा किस कदर दीदनी है कि उनकी बातें जो हैं वो आसमानों तक पहुँच रही है। हमारे साथ इस वक्त अलामा साहब मौजूद है जो बिहारी से आए हैं। अलामा साहब, क्या ऐसी बात थी इश्क़ रिज़वी में जो आप इतनी दूर से खिंचे चले आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे मोहतरम, इश्क़ रिज़वी ने हमें एक ऐसा जाम पिलाया है कि जिसका जो इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा है वो हमारे खून के कतरे कतरे में रस बस चुकी है। हमें नहीं मालूम कि इश्क़ रिज़वी क्या है कि जो जज्बात हमें यहाँ तक खींच कर लाते हैं। अगर हम अपने घरों में, अपने इलाका में भी तहरीक का कोई काम करने के लिए निकलें तो यकीन जाने हमें अपने तन मन धन की कोई बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। बस हम चाहते हैं कि हमारे दिलों के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा इसी तरह ज़िंदा और ताबिंदा रहे जिस तरह के अल्लामा रिज़वी साहब ने हमें पैगाम दिया है। अच्छा हज़रत, हमने तारीख साज नमाज जनाजा देखा, हमने तारीख साज चेलम देखा, आज तारीख साज उर्स मुबारक देख रहे हैं। ये अवाम का समंदर, वजह क्या है? करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं।
और अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि अल्लाह कलम तेरे हैं। ये आशिकान मुस्तफ़ा का ठाठे मारता समंदर एक जहरी सी बात है, लेकिन अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जब बंदा मुस्तफ़ा का हो जाता है फिर लोह और कलम भी उसके हाथ में थमा दिए जाते हैं। अच्छा अल्लामा साहब, हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की जिस दिन रिहाई हुई है, ऐसा लग रहा था कि जैसे मुसलमानों में कोई चौथी ईद आ गई है, इतनी खुशी की बात थी। मुझे बताएं, 27 साल का नौजवान हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी, उसको अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा। मुझे ये बताएं कि तहरीक लब्बैक को इससे कितनी कामयाबी मिली है? मैं इसके लिए एक मुख्तसर सा जुमला कहना चाहता हूँ जो कल भी मैं अपने दिल के अंदर ख्याल कर रहा था कि काश मैं अपने कायद अल्लामा साद रिज़वी साहब उसका मुझे कुर्ब हासिल हो और उम्र के कदमों का धोमन पी लूँ। मुझे इतनी खुशी हुई उनकी रिहाई पर कि अल्लाह ने उस नौजवान को इतना जज्बा और हिम्मत और ताकत अता फरमाई तो इसके मुस्तफ़ा के मिशन पर इस कदर डटे रहे। जिस तरह कि आपने सुना होगा कि मुबश्शिर लुकमान ने जब पूछा कि आपके गुर्दों से खून टपकने लगा, उसने कहा कि आप इस बात को छोड़िए, इससे ज़्यादा मुझ पर जुल्म ये हुआ कि मेरे कारकुनान पर शल और गोलियां बरसाई गई। तो मैं चाहता हूं कि हमारे कायद को अल्लाह ने वो जज्बा अता किया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं, अल्लाह हमें भी वो जज्बात अता फरमाए। अच्छा, आखिर क्या पैगाम देना चाहेंगे दुनिया के बेअदब और गुस्ताखों को, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें अब इस क्राउड पे जमी हुई हैं कि इस क्राउड ने अब इस्लाम जो है वो सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं दुनिया पर नाफिज करना है। तो दुनिया के बेअदब और गुस्ताखों के लिए आपका आखिरी पैगाम? उनके लिए आखिरी पैगाम ये है, जिस तरह मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन सब्बा नबियन हक तो रूहो, तो गुस्ताख और कादियानी लिबरल लोग जिनकी दहाइयों सालों से तो दो थी कि हम इस्लाम को दबा देंगे, अल्लाह ने एक मर्द कलंदर अल्लामा खादिम साहब रिज़वी साहब की सूरत में भेजा कि जिन्होंने उनकी तमाम कामों पर, उनकी तमाम मेहनतों पर पानी फेर दिया। और अल्लाह हमारे इन जज्बात को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें इसी तरह दिन की खिदमत करने की तौफीक। जी तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राउड का शोर, सदाएं लग रही हैं इस वक्त। फिजा जो है वो लब्बैक या रसूलल्लाह के नारों से यहाँ पे गूंज रही है। मैं स्टेज से यहाँ तक कवर करता आ रहा हूँ और तकरीबन 1 किलोमीटर तक तिल धरने की जगह नहीं है। उससे आगे का ये क्राउड आप देख सकते हैं। इससे आगे चला जाए तो 2 स्टेप से सिक्योरिटी से लोग गुजर के आ रहे हैं, जहाँ 2-2 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई हैं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।